Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Today I bring very important topic that is known as human reproductive system. In this reproductive system, before going to human reproductive system or sexual reproduction in male and female, first of all I would like to tell you different kind of reproductive system. In this reproductive system, we will see that especially for human in order to understand sexual reproduction, we should knew that what is the meaning of sexual reproduction. In sexual reproduction means male and female gametes are produced by male and female, which are sperm and ova, okay, which are fertilized or joined together. Fertilized means fused together to form a zygote then embryo. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म इन मेल, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन फीमेल, एंड दिस स्पर्म और एग स्पर्म join or penetrate inside the egg and become a zygote. Okay, this process is called fertilization, and this zygote after some time convert into smaller large number of cell. These large numbers of cells are called embryo, which are involved in sexual reproduction. Sex means sex. Sex means male and female. Without male female reproductive cell, a sexual reproduction cannot take place. Now male and female. So we are observing this in this picture. There is a male, a man, and female, a woman. Our father is a male and our mother is a female. So we can also see that our father and father has a male sex and our mother has a female sex. ठीक है, तो now our father and mother a woman, father is a man and mother is a woman. This means that man is a male, woman is a female. Understand this one classification? Thus a man is said to have a male sex and a woman is said to have a female sex. Similarly, a boy has a male sex है ना, and girl has a female sex. Okay, चलिए ठीक है. Like us human beings, other animals also have a male and female sexes. जैसे बफेलो में देख लीजिए, डॉग में देख लीजिए, मंकी में देख लीजिए, ठीक है, काव में है ना, आपकी बकरी गॉट में, ठीक है, मेल गॉट और फीमेल गॉट, मेल और फीमेल होता है, ही एंड शी. इवन अ प्लांट में भी देखते हैं, वस्कस रोजा साइनेसिस में भी मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल. as we will learn after a while, being male or female depends on the type of the sex cell present in one's body. An animal having male sex cell sperm, एनिमल के अंदर कौन सा सेल होता है? स्पर्म. इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड अ मेल. ऑन द अदर हैंड एन एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स कॉल्ड अ ओवा और एग्स. इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड अ फीमेल. इसकी बॉडी को हम फीमेल बोलेंगे. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक नए टेक्निकल टर्म की, जिसे हम कहते हैं गैमीट्स. क्या होते हैं? गैमीट्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म, स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स. these reproductive cells are called a sex cell. ठीक है, these cells are gametes. These gametes are two types, male gamete and female gametes, and the sex cell involved in a sexual reproduction called a gametes. Okay, so these are the gametes. Understand that? So male gamete in animal is called sperm. एनिमल में मेल गैमेट स्पर्म होता है, एंड द फीमेल गैमेट इन एनिमल इज कॉल्ड एग और ओवा. और हम फिगर में दे सकते हैं, जैसे हमने जब 9th क्लास में सेल वाला चैप्टर स्टडी किया था, तब हमने देखा था. तो ये आपका एक
स्पर्म दिखाया गया है, इसमें एक हेड होता है, इस हेड में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद ये आपका मिडिल पीस होता है, एक आपका फर्स्ट पोर्शन हेड हो गया, मिडिल पीस दूसरा पोर्शन हो गया, टेल होती है। टेल का काम होता है ये बॉडी के अंदर या ये मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ये आपका एग है, एग के अंदर भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन आपकी होती है एग की। तो एग और स्पर्म अपने आप में एक कंप्लीट सेल है, एग अपने आप में कंप्लीट सेल है। उसी तरीके से स्पर्म भी एक कंप्लीट सेल है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एनिमल। हाँ, ओवा और एग आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये इतने सारे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। दीज नोट दैट प्लीज नोट दैट अ फीमेल गैमेट फॉर अ फीमेल सेक्स सेल इज यूजुअली नोन बाय टू नेम्स, दो नाम से जाना जाता है, ओवम एंड एग। ठीक है, अच्छा इसके बाद ऑन द अदर हैंड, हाँ, वेदर we use a term ovum or egg, it will mean that something. Another point to be noted that plural ovum is ova, मतलब ovum का plural क्या है, ova. The ovum or egg contains water and stored food, इसमें फूड सब कुछ नरिशमेंट होता है। The important part of the ovum egg इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तो सारी कहानी है, न्यूक्लियस में ही आपके डीएनए वगैरह की पूरी सारी कोडिंग होती है, जो पेरेंटल कैरेक्टर को आगे कैरी करने के लिए हेल्प होती है। स्पर्म आर मोटाइल, स्पर्म मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, मिडिल पार्ट होता है और टेल होती है। टेल का काम होता है स्पर्म को मूवमेंट कराना। तो अब हम नई चीज़ देखते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स गिव राइज टू द सिंगल सेल कॉल्ड अ जाइगोट। जब गैमीट्स मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो उससे बनता है आप फर्टिलाइजेशन होता है और बनता है जाइगोट। वी ऑल्सो सी दैट द सेल विच फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमीट आर कॉल्ड एंड अ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड अ जाइगोट। मतलब मेल और फीमेल जाइगोट से, मेल है ना, फीमेल के फ्यूजन होने से जो बनेगा वो बनेगा जाइगोट। ठीक है, क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ, जाइगोट, इसका मतलब क्या हुआ कि जाइगोट केवल फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल के बीच में होता है। अब फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज किया है इन्होंने, तो वो ये कह रहे हैं कि फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर अ मेल गैमीट मस्ट कंबाइन टू अ फीमेल गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और गैमीट का आपस में फ्यूज होना मस्ट है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद अ फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट। मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अंडरस्टैंड, इसे हम जाइगोट कहते हैं। सिंस द मेल गैमीट ऑफ अ एनिमल इज कॉल्ड अ स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड अ ओवम। ये मैंने पहले भी बता दिया है, कई बार यहाँ रिपीट हो रही है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म ओवा, और है ना, स्पर्म विद ओवा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट इज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। अब इतनी बात क्लियर हो गई। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे आपके स्पर्म हैं, एक ओवा है, ये ओवा उनमें से स्पर्म में से एक स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा, ये जाइगोट आपका बनेगा। जाइगोट से फिर फ्यूचर में डेवलपमेंट होकर के फॉइटस बनेगा और फॉइटस बन के आप बेबी का प्रोडक्शन होगा। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग गैस्टेशन पीरियड होता है ना। फीमेल के अंदर आपका मैन के अंदर 9 मंथ का गैस्टेशन पीरियड होता है। गैस्टेशन पीरियड का मतलब गैस्टेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जिस टाइम से फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम से बेबी के बर्थ तक के टाइम को गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब ये आपका मेमोरी ग्लैंड मैमल्स क्यों कहा जाता है, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड होती हैं और बच्चों को जन्म देते हैं।
बर्थ टू बेबी। अब हम बात करते हैं, जब ये फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है तो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना, एक बॉडी के अंदर। तो वी हैव जस्ट स्टडीड दैट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ovum or egg is called a fertilization. Now the ovum or egg is made in the body of the female animal. So the fertilization of an egg by a sperm तो बाय अ स्पर्म। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो द फर्टिलाइजेशन which occurs inside the female body is called an internal fertilization. In internal fertilization of male animal, the male animal egg are fertilized by the sperm inside the body. In mammals internal fertilization takes place. ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी बात समझते हैं। इन इंटरनल fertilization takes place in a mammal including a human being, bird and reptiles in a internal fertilization। बहुत सारा। इसके बाद कुछ और भी देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। वो कह रहे हैं द मेल और फीमेल पुट हिज स्पर्म इनटू द फीमेल एनिमल बॉडी। द transfer of sperm from a testes of a male animal into female animal body occurs at the time copulation। ठीक है। copulation is a sexual activity, फिजिकल एक्टिविटी और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कह सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ पीनिस इनटू द वेजाना इज कॉल्ड अ कॉपुलेशन। जहाँ कॉपुलेशन का मतलब यही है, कॉपुलेशन इज द एक्ट बाय विच मेल एनिमल ट्रांसफर इट्स स्पर्म इनटू द फीमेल एनिमल बॉडी ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। वेरी है ना लार्ज नंबर, काफ़ी लार्ज नंबर, पर उसमें से सारे स्पर्म खराब हो जाते हैं, एक स्पर्म ही एग के साथ है, या जितने एग होते हैं उनके साथ है वो करता है। मेल जो आपके ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें एक ही एग काम करता है, उसी का फ्यूजन होता है। बट जो आपके एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा हो सकता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन अ मैन पुट्स इट्स स्पर्म इनसाइड द वुमेन्स बॉडी थ्रू एन ऑर्गन कॉल्ड पीनिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या फिजिकल रिलेशनशिप करता है फीमेल के साथ, तो अपने पीनिस को फीमेल की ऑर्गन के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वेजाना, उसके अंदर डालता है। जैसे वो डालता है तो स्पर्म उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है वुमन जो आपका ओवरी के पास है। ठीक है, ओविडक्ट में जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये होता है जैसे आपका फीमेल है, ये मेल है, फीमेल मेल को बुलाता है, तो जैसे ही वो बुलाता है तो वो क्या करती है कि मेल उस फीमेल को फिजिकली टच करता है ना, उसके कंधे पे आ जाता है, तो उसी टाइम पर फीमेल बहुत सारे अंडे को वहाँ रिलीज कर देती है, और जो आपका मेल होता है उन्हीं अंडों के ऊपर अपना स्पर्म छोड़ देता है। इसलिए यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। सो द फीमेल एनिमल्स बॉडी, इन अदर वर्ड्स इन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, टोड्स एंड फिशेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फिश वगैरह में। सो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन द मेल एंड फीमेल एनिमल रिलीज स्पर्म ऑन द एग। ठीक है, ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी है। तो इसी से पता चलता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये रही है। ठीक है, क्लिक करते हैं इस पर। हाँ, तो फ्रॉम अबव डिस्कशन हमने ये नतीजा निकाला कि
कि देयर आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन नेचर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स, cats, dogs and birds are the example of internal fertilization. The fertilization in frogs and fishes are the example of external fertilization. We know that the new cell which is formed by fertilization is called a zygote, and this zygote then grows, develop full organism called a organism और बेबी कॉल्ड एनिमल, इसे हम एनिमल कहते हैं। ठीक है, द मेथड इन विच अ जाइगोट ग्रोज, मतलब ऐसा मेथड जिसमें जाइगोट ग्रो करता है, डेवलप्स इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट एनिमल। ठीक है, मतलब अलग अलग एनिमल में होता है। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, द जाइगोट ग्रोज एंड डेवलप इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एंड देन द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, है ना, जस्ट लाइक ह्यूमन। एनिमल लाइक कैट, डॉग्स गिव बर्थ देयर बेबीज, यंग वंस। ठीक है, बट द प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट इन द एनिमल, लाइक बर्ड्स एग को रिलीज करते हैं। अ हैन ऑल्सो सिट्स ऑन इट्स फर्टिलाइजेशन फॉर हैचिंग। ठीक है, गर्म करने के लिए इसे हम हैचिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट चिक एंड दिस चिक कम्स आउट द एग ऑफ द एग्स बाय ब्रेकिंग। ठीक है, इसके बाद इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट गिव बर्थ टू द इंडिविजुअल लाइक अ ह्यूमन्स। ठीक है, लाइक ह्यूमन्स टू। अच्छा, अब हम एक और बात देखते हैं, द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ एडवांटेज होता है। एडवांटेज क्या होता है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ मैनी एडवांटेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट, बिकॉज दे हैव अ सेम जीन्स, उनके जीन्स एकदम से सेम होते हैं। एंड जेनेटिक वेरिएशंस इज नॉट अ पॉसिबल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है, नई प्रजातियाँ हो जाती हैं, उनमें डेवलपमेंट हो जाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग ऑल दो सिमिलर टू देयर पेरेंट, बट उनके अंदर जो जीन का प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। सिंपली हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू अ ग्रेटर वेरिएशंस इन पॉपुलेशन में काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेज आना, डेवलपमेंट होना, मॉडर्नाइजेशन होना, ये सब होता है जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। क्योंकि जब स्पर्म और ओवम बनता है तो उससे न्यू स्पीशीज बनती है, तो इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब डेवलपमेंट्स होना। ठीक है, इसके बाद है वाई द अमाउंट DNA डज नॉट गेट डबल्ड ड्यूरिंग द। तो अब मैं आपको बताऊं कि जब स्पर्म बनता है, स्पर्म, तो उसमें जो आपके 2X क्रोमोसोम थे वो X क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, X क्रोमोसोम्स के अंदर। और यही X क्रोमोसोम दूसरे X क्रोमोसोम के साथ ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद फिर बन जाता है आपका क्या, 2X क्रोमोसोम, उससे 2X क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही, चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। सो द गैमेट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। गैमेट्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल के नाम से जानते हैं, कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स, which contains only half the amount of the DNA और half of the number of the, है ना, compared to the normal body। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपने देखा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव
क्रोमोसोम्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं 46 है। इनमें से एक एक पेयर मतलब वन पेयर है ना, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपका मेल होता है उसमें एक्स और वाई टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं और जो फीमेल होता है उसमें केवल और केवल एक्स टाइप के रिप्रोडक्टिव आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल का एक्स फीमेल का एक्स दोनों मिलते हैं तो फीमेल बन जाता है, गर्ल चाइल्ड बन जाती है। एक्स आपका मेल का वाई और फीमेल का एक्स फ्यूज होता है तो बन जाता है बॉय। ये आपके बॉय और गर्ल के बनने का हाफ प्रोसेस है। ठीक है, अब देखते हैं वो करें कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल के अंदर कैसे होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट, ओके, मेल सेक्स सेल जिसे हम स्पर्म कहते हैं। तो ये प्रोसेस स्टेप बाय करा रहे हैं, जो हमने समझा दिया है वही वो कह रहे हैं। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसे हम एग कहते हैं। अब क्या होता है, ये मेल से आता है, ये फीमेल से आता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं जब सेक्स होता है तो इससे बन जाता है आपका क्या, ये स्पर्म इसके पास आ जाते हैं और बन जाता है आपका जाइगोट। यही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से आपका बेबी बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कि द द स्पर्म, हाँ, द स्पर्म एंटर इनटू अ वम, है ना, फ्यूजेज विद अ सेक्स सेल और बिकम अ जाइगोट। और दिस प्रोसेस मतलब एंट्रिंग ऑफ अ स्पर्म इनटू द ओवम ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग सेक्स इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। द जाइगोट देन डिवाइड इन अगेन एंड अगेन। जाइगोट का कई बार करोड़ों बार डिवीज़न होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद पूरा बेबी बनता है। अब बात करते हैं फ्रॉम द अबव डिस्कशन, फ्रॉम द above discussion from the above discussion we conclude that the whole process of the sexual reproduction in animal involves formation of sperm and egg, okay, अच्छा, joining together of a sperm and egg to form a zygote and then the zygote and develops of a zygote टू फॉर्म अ बेबी एनिमल, तो इससे एनिमल बन जाता है। चलो ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो प्यूबर्टी से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे। और मैं आपसे होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज आएगी और 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर के लिए जो फियर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आने वाले टाइम में आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी। तो इसी होप के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, ओके बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।